Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Today we will continue our topic of nuclear power plant. So, as long as this portion of syllabus is concerned, that is after mid, it has mainly focused on the nuclear power plant, and all these topics hopefully will be covered from the recommended book, that is Power Plant Technology by M.M. Al-Wakil. So from this book I have prepared some notes, lecture notes. So starting from that, first is fission reactor types. We already know that in fission, 1 neutron is absorbed by the fissioning nucleus, but between 2 and 3 fast fission neutrons are produced. कि जब फिशन होता है रिएक्शन, तो उसमें होता ही है कि 1 न्यूट्रॉन जो है वो फिशनिंग न्यूक्लियस अब्जॉर्ब कर लेता है और 2 से 3 फास्ट न्यूट्रॉन जो है ना वो भी प्रोड्यूस होते हैं। इसकी फुल डिटेल जो है ये इस टेबल में मौजूद है। अगर हमारे पास यूरेनियम हो तो नंबर ऑफ फिशन न्यूट्रॉन पर वो है 2.51। नंबर ऑफ फिशन न्यूट्रॉन पर थर्मल न्यूट्रॉन अब्जॉर्ब ये है 2.28। और U235 हो तो 2.47 एंड 2.07, और प्लूटोनियम Pu239 अगर हो तो 2.9 एंड 2.10 ये है 2.10। ये बेसिकली ये बता रहा है कि अगर आप नेचुरली करते हैं, नेचुरल फ्यूल के थ्रू करते हैं, नेचुरल जो यूरेनियम है उसके थ्रू करते हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम फिशन रिएक्शन डिके कर जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, हमने स्टडी रेट पे चलाना होता है ताकि जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, पावर की डिमांड है, वो पूरी होती रहे। तो इन ऑर्डर फॉर अ reactor using U35 as fuel to operate at a steady state, no more than 1.47 neutron should be lost to the fission process. 1.47 से ज़्यादा नहीं लॉस होने चाहिए ताकि ये हो steady rate रहे। Such losses occur in two ways: non-fission absorption in reactor core material, के reactor core material उसको absorb कर लेता है, fissioning नहीं होती, which includes structure materials, coolant, channel walls, fuel cladding, coolant moderator and fuel material itself. And second जो है वो है leakage of the core, a function of both core materials and size. लीक कर जाए वो कोर से, बाहर निकल जाए। More leakage occur if the neutron mean free path in the core material is large. अगर वो mean free path जो है large है वो निकल सकती हैं। And if the reactor size is small और reactor का size small हो। Surface to volume ratio is large, यानी surface to volume ratio अगर large हो, यानी surface ज़्यादा है वॉल्यूम कम है, तो फिर वो escape कर जाएगा। The simplest fuel to use in a reactor in a natural uranium composed of about 0.7% U33 and 99.3% U238 and a trace of U34. So 0.7% of U35 and about 99.3% U238 and a trace of U234. In order to obtain critically a steady power, three methods are used. One is building a heterogeneous reactor, second is enriching the fuel, and third is both. Building a heterogeneous reactor, if natural uranium or in general low enriched fuels are to be used, the fuel must be subdivided into separate fuel elements in the form of pins, rods, plates, hollow cylinder, pellets, spheres. तो
फ्यूल जो है वो छोटे छोटे एलिमेंट में हम डिवाइड कर देते हैं, पिन में, रॉड में, पैलेट्स में, जैसे नॉर्मली पैलेट यूज़ करते हैं, प्लेट्स में, हालो सिलेंडर में, स्फेयर में। These are placed in the core, ये कोर के अंदर रखती हैं, with the space between them filled with a moderator। कोर के दरमियान हम मॉडरेटर यूज़ करते हैं, 9.7 फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये 9.7 में ये शो किया गया है। इसमें अगर आप देखें तो ये एक प्रेशर वेसल है, कूलेंट इन यहाँ से होता है, यहाँ से इसमें से गुजरने के बाद ये कूलेंट आउट हो जाता है। इसमें से अगर आप देखें तो ये आपके कंट्रोल रॉड है, जैसे जैसे आप नीचे करते जाएंगे इन दोनों के दरमियान रिएक्शन नहीं हो सकेगा। ये बाहर जो है ये थर्मल शील्ड है, ये कोर की बैरल है, ये नीचे वाली स्पोर्ट्स प्लेट है। तो ये हेट्रोजीनियस रिएक्टर है। दिस इज अ हेट्रोजीनियस रिएक्टर कोर because the fuel elements are relatively thin or newly born fission neutron. Even near the center of the element has a good chance of escape before attaining resonance energies because of low fuel scatter cross sections and the short distance it has to travel to get out of the element. होता ये है कि क्योंकि वो थीन होते हैं एलिमेंट, तो जो नया न्यूट्रॉन बना है उसके एस्केप करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि उसने रेजोनेंस एनर्जी से पहले वो एस्केप कर जाए। और एक और ये कि लो फ्यूल स्कैटर क्रॉस सेक्शंस होते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस होता है जो ट्रैवल करना होता है, ए डिस्टेंस दैट इज़ शॉर्ट कंपेयर्ड विद द न्यूट्रॉन मीन फ्री पाथ फॉर स्कैटर इन फ्यूल। तो बाहर जाने के बजाय उसके अंदर उसका स्कैटर्ड होने के लिए ज़्यादा चांस होते हैं। Thus, this neutron spends the resonance energy period outside the fuel element and escape resonance capture। तो वो टाइम ज़ाया कर देते हैं। Once in the moderator, the neutron become thermalized in a few collisions। मॉडरेटर में जिस वक्त एक न्यूट्रॉन थर्मलाइज हो जाए कुछ collisions में, then it enters the fuel, फिर वो फ्यूल में इंटर होता है at thermal energies, उस थर्मल एनर्जी थे the probability of fission by U-235 far exceed that of non-fission absorption। तो फिशन की U-235 की ज़्यादा होती है कि नॉन फिशन से, अब्जॉर्प्शन से, तो वो फिर फिशन होगी बाई U-238 एंड U-235 एंड 38 एंड चेन रिएक्शन इज़ पॉसिबल। और इस तरह फिर जो है चेन रिएक्शन पॉसिबल होता है कि आप जब थर्मलाइज कर लेते हैं तब। एक्चुअली सम रेजोनेंस अब्जॉर्प्शन इज़ अनअवॉइडेबल, कुछ जो है रेजोनेंस अब्जॉर्प्शन जो है वो अनअवॉइडेबल होती है, आप मतलब होनी ही होनी है, ज़रूर होगी, चाहे आप बचना भी चाहें फिर भी नहीं बच सकते। बट नॉट इनफ टू एडवर्सली इफेक्ट न्यूट्रॉन इकोनॉमी, लेकिन उससे न्यूट्रॉन इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट नहीं होती। जितने आपको फर्दर न्यूट्रॉन चाहिए फर्दर जनरेशन को कैरी ऑन करने के लिए वो फिर मिल जाते हैं। Also, some fission of U-238 by high energy neutron occurs in a heterogeneous reactor। कुछ जो फिशन होती है U-238 by high energy neutron occurs in a heterogeneous reactor। कुछ फिशन जो है वो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन से भी होती है। Some non-fission absorption by U-238 result in the production of Pu plutonium-239, a fissionable isotope, a process similar to that which occur in fast breeder reactor। तो इसमें वही प्रोसेस है जो फास्ट, ये हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन 11.2 में। जो नॉन फिशन एब्जॉर्प्शन होती है U-238 से, उससे ये होता है कि वो फिशन रिएक्शन यानी वो डिवाइड नहीं होगा, बल्कि वो उसमें उसका जो नंबर है एटॉमिक नंबर वो फर्दर एक बढ़ने के बाद फिर वो बन जाता है प्लूटोनियम, और वो फिशनेबल होता है। जब वो फिशनेबल होता है तो इस तरह फिर जो है ना वो फास्ट ब्रीडर में जाना करते हैं, तो वो प्रोसेस हो सकता है। बिकॉज न्यूट्रॉन इकोनॉमी इज डिफिकल्ट टू कम विद
कम बाई विद नेचुरल यूरेनियम। न्यूट्रॉन की इकोनॉमी को नेचुरल यूरेनियम से वो रखना मुश्किल होता है। द मॉडरेटर हैज़ टू हैव अ वेरी लो न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। मॉडरेटर के पास बहुत कम होता है न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन। दिस एलिमिनेट ऑर्डिनरी वाटर एंड अदर हाइड्रोजीनियस मटेरियल्स। इसी वजह से जो ऑर्डिनरी वाटर है या हाइड्रोजीनियस मटेरियल है वो मॉडरेटर नहीं हो सकता। जैसे कि आर्गेनिक, ये चीज़ें नहीं हो सकती। विद नेचुरल यूरेनियम के साथ मॉडरेटर के तौर पे आम वाटर नहीं हो सकता। बिकॉज दे हैव रिलेटिवली हाई न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शंस। उसमें न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होता है और कंसिक्वेंटली लो मॉडरेटिंग टू अब्जॉर्प्शन रेशो। और अब्जॉर्प्शन रेशो जो है वो लो मॉडरेटिंग होती है। ऑल वाटर एंड ऑर्गेनिक moderated and cooled reactors must use fuels slightly enriched in U-235. A heterogeneous natural uranium reactor can be built. However, with moderator of low neutron absorption cross section such as graphite or heavy water. बहरहाल ये है कि नेचुरल यूरेनियम के जो बनाते हैं हेट्रोजीनियस रिएक्टर, उसमें हम हैवी वाटर अलबत्ता यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट या हैवी वाटर D2O। So they later called the heavy water reactor, and it is the basic of CANDU reactor, Canadian deuterium uranium. Deuterium is the name of heavy water. तो ये इसमें होता है, ये उसने पहले टाइप की जो हेट्रोजीनियस था उसकी बात की है। अब आ जाते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड ऑफ अटेनिंग क्रिटिकलिटी इज़ टू इनरिच द फ्यूल। क्रिटिकलिटी का मतलब ये है कि हमें जितने न्यूट्रॉन चाहिए फर्दर उसके लिए फिशन के लिए, उतने न्यूट्रॉन हमें मिलते रहें और ये प्रोसेस डिके ना करे, चलता रहे कंटिन्यूसली। तो इसको अटेन करने के लिए सेकंड जो मेथड है वो है बाय आर्टिफिशियली इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ U-235 और अदर फिशनेबल मटेरियल इन इट। तो हम इंक्रीज कर दें आर्टिफिशियली U-235 को, और इस चीज़ को कहते हैं इनरिचमेंट। ये जो इनरिच का वर्ड यूज होता है बेसिकली वो ये होता है। इन दिस केस द इफेक्ट ऑफ U-238 इज लेस प्रोनाउंस्ड, और इस केस में फिर जो है 238 का इफेक्ट जो है ना कम हो जाएगा। लो इनरिच फ्यूल ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू परसेंट, अगर उसकी परसेंटेज कम है, लो इनरिच फ्यूल है, still have to be the heterogeneous type for reasons similar to the, तो वो भी heterogeneous type है। रीज़न क्या है? सिमिलर टू दोज गिवन फॉर नेचुरल यूरेनियम, वही जो नेचुरल यूरेनियम के लिए भी है। ऑर्डिनरी वाटर often incorrectly called light water may be used as moderator resulting again in a thermal heterogeneous reactor। लेकिन अब इस केस में ऑर्डिनरी वाटर भी यूज कर सकते हैं। Light water reactor are of two main types: the pressurized water reactor PWR section 10.6 में पढ़ेंगे, and boiling water reactor 10.7 में पढ़ेंगे। Both constitute the largest number of reactors built during the first decades of nuclear power। ये इसकी दो टाइप हैं लाइट वाटर की, एक प्रेशराइज्ड एक बॉइलिंग। फ्यू डिकेड्स शुरू के जो दिन थे उन डिकेड्स थे, दहाइयाँ थी, उनमें हम इस तरह करते थे। थर्ड थर्मल रिएक्टर टाइप इज गैस कूल्ड रिएक्टर। कौन सा है? गैस कूल्ड। अब मीडियम क्या आ गया? गैस। द गैस कूलेंट इज आइदर CO2 which is a poor moderator despite the presence of C because of its low density, और C जो है उसकी लो डेंसिटी होती है कार्बन की, इस वजह से। which has no moderating और हीलियम, और हीलियम जो है उसकी कोई मॉडरेटिंग कैपेबिलिटीज नहीं है, यानी CO2 होगा या हीलियम होगा और उनकी मॉडरेटिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। A separate solid moderator such as graphite BE or BeO is used. Beryllium oxide is used with graphite, the real choice। ग्रेफाइट आमतौर पे यूज़ होता है, और ग्रेफाइट आप यूज़ कर सकते हैं, बेरिलियम या बेरिलियम ऑक्साइड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो गैस आप यूज़ कर रहे हैं वो तो यूज़ हो ही नहीं सकता मॉडरेटिंग के लिए, तो मॉडरेटर आप करेंगे सॉलिड के।
यूज वो ये हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ सच रिएक्टर्स, और इस किस्म के जो रिएक्टर की टाइप्स हैं उसमें आता है ब्रिटिश मैग्नोस, AGR, US HTGR एंड जर्मन THTR रिएक्टर्स, ये आते हैं इस थर्ड टाइप में। स्लाइटली हायर एनरिचमेंट अबाउट 20%। अच्छा, ये बात पीछे हमने जो की थी, इस पैराग्राफ में जो बात की थी वो लो परसेंटेज की बात की थी, फ्यू परसेंट। अब हम कर रहे हैं स्लाइटली हायर एनरिचमेंट अबाउट 20%। अलाउ द थर्मल होमोजीनियस रिएक्टर टू बी बिल्ट। थर्मल होमोजीनियस रिएक्टर भी हम बना सकते हैं अगर इसकी परसेंटेज 20% से ज़्यादा हो या 20% के अबाउट हो। द फ्यूल इज मिक्स विद द मॉडरेटर आइदर इन लिक्विड फॉर्म, फ्यूल या फिर लिक्विड फॉर्म में होगा, कॉल्ड ए फ्लूइड फ्यूल रिएक्टर। अगर फ्लूइड जो है, फ्यूल जो है वो मॉडरेटर जो कि लिक्विड फॉर्म में है उसके साथ हो, मॉडरेटर फ्यूल तो वही होगा पैलेट शैलेट, और मॉडरेटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में अगर है तो फिर उसको हम कहेंगे फ्लूइड फ्यूल्ड रिएक्टर। और सॉलिड फॉर्म सच एज यूरेनियम जिरकोनियम हाइड्राइड, U2 polyethylene mixture, none of these have been built as power reactors। इनमें से अभी तक पावर रिएक्टर्स के तौर पे नहीं बन सका जो ये बुक पब्लिश हुई है सो तक। In highly enriched fuels beyond about 20%, the contribution of U-238 resonance is no longer of prime importance। इसकी रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस नहीं रहती। And contribution of U-235 to fission cross section of mixture outweigh, उसकी वेटेज बढ़ जाती है। U-238 नॉन फिशन कैप्चर इफेक्ट्स। इन दिस केस नो मॉडरेटर इज नेसेसरी, इस केस में मॉडरेटर जरूरी नहीं है। एंड वी मे हैव अ फास्ट रिएक्टर, हम फिर फास्ट रिएक्टर यूज कर सकते हैं। हाईली एनरिच्ड वन रिलाइंग प्राइमरली ऑन हाई एनर्जी फास्ट न्यूट्रॉन फॉर फिशन। फास्ट रिएक्टर वो है जो रिलाई करता है हाई एनर्जी फास्ट न्यूट्रॉन पे फॉर फिशन के लिए। फास्ट रिएक्टर कैन बी होमोजीनियस बट आर यूजुअली हेट्रोजीनियस। फास्ट रिएक्शन होमोजीनियस भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली heterogeneous होते हैं। The fission energy generated in the fuel in all reactor types must be recovered by a coolant। जो आपकी फिशन एनर्जी है या फ्यूल में जनरेट वो रिमूव होनी चाहिए कूलेंट के थ्रू, विच लीव्स द रिएक्टर एट हायर टेम्परेचर देन व्हेन इट इंटर्स। तो वो जो कूलेंट है वो इंटर होता है लो टेम्परेचर पे और जब आउट होता है तो उसका टेम्परेचर बढ़ चुका होता है और हीट ट्रांसफर होती है इस तरह। द रेट ऑफ हीट रिमूवल मस्ट be such that the fuel operates within safe temperature और boiling limits। हीट रिमूवल का रेट ऐसा होना चाहिए कि फ्यूल जो ऑपरेट करे वो सेफ लिमिट के अंदर रहे या बॉइलिंग लिमिट के अंदर रहे। द एनर्जी कैरीड आउट बाय द कूलेंट इज यूज्ड इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। एनर्जी जो कैरी की जाती है कूलेंट इज यूज्ड इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल टू जनरेट, वो हम एनर्जी जो होती है कूलेंट की वो हम थर्मोडायनेमिक साइकिल में यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, जैसे कि स्टीम टरबाइन हम यूज़ करते रहे हैं। इट इज़ फॉर्चुनेट दैट इन मोस्ट थर्मल रिएक्टर द कूलेंट ऑर्डिनरी और हैवी वाटर कैन डबल एज अ मॉडरेटर। मतलब आप उसको मॉडरेटर और कूलेंट दोनों के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ये इसका एक फ़ायदा होता है। गैस कूल्ड थर्मल रिएक्टर यूज़ आइदर CO2 और हीलियम फॉर कूलिंग। कूलिंग के लिए ये CO2 कूलिंग होगा, लेकिन मॉडरेटर ये नहीं होंगे, मॉडरेटर सेपरेट होगा जैसे हमने बोला। फास्ट रिएक्टर यूज नो मॉडरेटर, फास्ट रिएक्टर में मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं होती। एंड नीड अ कूलेंट दैट डज नॉट मॉडरेट द न्यूट्रॉन्स, और कूलेंट चाहिए और मॉडरेटर नहीं चाहिए। एंड दैट हैज़ ए हाई हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। जैसे फास्ट के लिए में आपको कूलेंट जो है ना उसका हाई चाहिए आपको कोफिशिएंट, बिकॉज ऑफ लार्ज पावर डेंसिटीज इन फास्ट रिएक्टर कोर्स। क्योंकि अब फास्टली हो रहा है और एनर्जी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए हीट ट्रांसफर थोड़े वक्त में ज़्यादा होना चाहिए, हीट ट्रांसफर रेट ज़्यादा होना चाहिए। लिक्विड मेटल्स प्राइमरली मोल्टन सोडियम Na सोडियम मोल्टन आर द मोस्ट कॉमन। मोल्टन सोडियम का यूज़ होती है। सच रिएक्टर्स आर कॉल्ड लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर, लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स। तो फास्ट रिएक्टर में क्या यूज़ होता है, लिक्विड मेटल मोल्टन सोडियम, और उसको हम कहते हैं लिक्विड मेटल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, LMFBR। FBR फास्ट ब्रीडर रिएक्टर।
alum liquid metal. Gases, primarily helium, has also been considered as fast reactor coolant. हीलियम को हम यूज़ पार्टिकुलर हीलियम है कंसिडर एज फास्ट रिएक्टर. हीलियम जो है वो फास्ट रिएक्टर कूलेंट के तौर पे हम यूज़ कर सकते हैं. सच रिएक्टर आर कॉल्ड गैस कूल्ड फास्ट रिएक्टर, और ऐसे रिएक्टर को हम गैस कूल्ड फास्ट रिएक्टर कहते हैं. तो ये इसकी एक छोटी सी समरी भी बनाई हुई है. द मोस्ट कॉमन फिशन पावर रिएक्टर टाइप्स, ये न्यूट्रॉन एनर्जी, थर्मल न्यूट्रॉन या स्लो न्यूट्रॉन. उसके लिए PWR, GCR, HWR हैज़ बीन गैस कूल्ड. ऐसे ये 4 टाइप्स, ये हम आगे होपफुली पढ़ें भी गए इन सेक्शंस में. इसमें होता क्या है कि कूलेंट के तौर पे ये यूज़ होता है, मॉडरेटर की तरह यही यूज़ होता है, बस इसमें गैस वाले में फ़र्क है. बाकी फ्यूल एनरिचमेंट लो होती है, HWR में नेचुरल ही है, और फास्ट में जो है ये PO2 यूज़ करते हैं और UO2 यूज़ करते हैं एनरिचमेंट के लिए, और कूलेंट के तौर पे ये सोडियम या हीलियम यूज़ कर लेते हैं, LMFPR. तो ये एक समरी दी हुई है, अगर आप ये रीड आउट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद ये समरी आपके लिए स्टडी करना ईजी है, और इस समरी से भी आप याद रख सकते हैं इस सारी डिस्कशन को. इसके बाद आ जाता है रिएक्टर कंट्रोल. देयर आर सेवरल मेथड टू कंट्रोल एन रिएक्टर टू स्टार्ट, इंक्रीज, डिक्रीज और टर्न ऑफ इट्स पावर. रिएक्टर कंट्रोल मतलब ये कि पावर को अपने कंट्रोल करना है, कब स्टार्ट हो, कब ऑफ हो, ऑन हो, इंक्रीज करनी पावर, कम करनी है, टर्न ऑफ करनी है. द मोस्ट कॉमन मेथड इज द यूज ऑफ कंट्रोल रॉड्स. आमतौर पे हम कंट्रोल रॉड्स यूज़ करते हैं. दीज रॉड में बी शेप्ड लाइक द फ्यूल रॉड्स. ये रॉड जो होती हैं उनकी फ्यूल रॉड्स के तौर पे होती हैं, एंड आर इंटर स्प्रेड थ्रू आउट द कोर. फिगर 9.17 अगर आप देखें इसमें, तो ये कंट्रोल रॉड्स हैं. ये जैसे जैसे नीचे करते जाएंगे कम हो जाएगा रिएक्शन, जैसे जैसे ऊपर करते जाएंगे रिएक्शन बढ़ता जाएगा. तो ये कंट्रोल मैकेनिज्म है. These rods may be shaped like the fuel rods themselves and are interspersed throughout the core. Instead of containing fuel, they contain a neutron absorber, also called poison, such as boron. अच्छा, जो न्यूट्रॉन अब्जॉर्बर भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम रिएक्शन को कंट्रोल कर सकें. इसीलिए जब हम नीचे करते हैं तो अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी और फिर रिएक्शन कम होगा. बोरॉन, कैडमियम एंड इंडियम ये आप यूज़ करते हैं जो कंट्रोल रॉड होते हैं. दे हैव हाई न्यूट्रॉन अब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन एंड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन. ये अब्जॉर्प्शन करते हैं और उससे न्यूट्रॉन मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, कम होगी. सच कंट्रोल रॉड्स आर डिजाइंड विद सफिशिएंट अब्जॉर्बर टू चेंज द न्यूट्रॉन बैलेंस इन कोर. ये अब्जॉर्बर मतलब मुनासिब होता है, सफिशिएंट होता है, जितना चाहिए उतना होता है, so that less than one neutron is left for fusion for each neutron engaging in a fission, कि एक न्यूट्रॉन ही फिशन में इंगेज हो. A situation that would lead to a power decrease and eventual shutdown. और फिर क्या होगा, जब सिर्फ एक हो रहा है तो फिर शट डाउन हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता. The control rod are operated by control rod drives that can be moved them in and out of the core around a power equilibrium position, which is usually a partially inserted position. कंट्रोल रॉड पार्शियली इंसर्टेड पोजीशन में होते हैं और आप ड्राइव के थ्रू उनको ऊपर नीचे करके मूव इन एंड आउट कर सकते हैं, जिससे ये होगा कि पावर इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो आप अचीव कर सकते हैं. द रॉड्स आर मूव आउट टू इंक्रीज पावर. जैसे जैसे आप इनको इस डायग्राम में अगर मैं दिखाऊं आपको, अगर ये आप कंट्रोल रॉड बाहर करेंगे इसके अंदर रिएक्शन तेज़ हो जाएगा और पावर ज़्यादा होगी. जैसे आप नीचे करेंगे कम होता जाएगा और फिर ये रिएक्शन ख़त्म भी हो सकता है, शट डाउन हो सकता है. द रॉड्स आर मूव आउट टू इंक्रीज द पावर एज एट अ प्रिस्क्राइब्ड सेफ रेट. जो सेफ रेट हो उस पर हम उसको कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं. एंड आर मूव इन टू डिक्रीज पावर, और डिक्रीज पावर करनी हो तो मूव इन कर देते हैं. In either case, when the required power is attained, the rods are returned to the equilibrium position. जैसे ही ये कर लें उसके बाद ये equilibrium position में
चले जाते हैं। रॉड कैन आल्सो बी यूज्ड टू एडजस्ट पावर लेवल्स सेलेक्टिवली विद इन द कोर टू हेल्प इवन आउट द रेडियल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। पावर लेवल को भी एडजस्ट करने के लिए, हाँ बिल्कुल, कि आप उतने जितनी पावर चाहिए उतनी कंट्रैक्ट इसका रखें कि वो इतना ऑब्जॉर्व करे न्यूट्रॉन कि आपकी पावर जो है वो उसके लिए बेहतर रहे। बिल्कुल सही। फ्यूल जोनिंग, द यूज ऑफ वेरिएबल फ्यूल इंगेजमेंट विद इन द कोर, यूजली 3 roughly concentric zones are used, is also used to attain the same purpose। फ्यूल जोनिंग भी हम इसी के ज़रिए कर सकते हैं। एक ख़ास फ्यूल का जोन होता है और वो भी कंसंट्रिक जोन्स होते हैं। Control rod can be suddenly and completely inserted in the core to shut down in case of an emergency फौरन आप शट डाउन कर सकते हैं इंसर्टेड इन करके। Such an operation is called a scram। ये इमरजेंसी में जो बंद होता है इसको हम कहते हैं scram। It can be done automatically by or manually by a visible colored button on the reactor कंसोल इन दी कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में होता है बटन, वो ऑपरेटर के यूज़ के लिए, आसानी के लिए उसका एक कलर होता है, तो वो दबाएंगे तो बंद हो जाएगा। ए नंबर ऑफ रॉड्स मे बी बिल्ट इनटू दिस सिस्टम व्हिच आर यूजुअली फुली विथड्रॉन फ्रॉम द कोर ड्यूरिंग नॉर्मल ऑपरेशन। कुछ ऐसे रॉड होते हैं फुली आप विथड्रॉ कर लेते हैं ताकि जो नॉर्मल ऑपरेशन होता है, एंड व्हिच हैव द सोल फंक्शन ऑफ शट डाउन बाई बिकमिंग फुली इंसर्टेड अपॉन द डिमांड। यानी आम ऑपरेशन में वो पार्शली इंसर्टेड भी नहीं होते, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के केस में आप उनको इंगेज करेंगे। The equilibrium position varies with life of the core. As more fuel is depleted, is fissioned with time, fewer neutrons are produced and more neutrons are absorbed in non-fission reactors। equilibrium position जो आप अचीव कर सकते हैं, जो वेरी कर सकते हैं, जिस the rods are then slowly moved to less inserted position to compensate for loss of neutron and to keep the core in the equilibrium। अगर equilibrium डिस्ट्रॉय हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेके कि अगर स्लो डाउन होना है तो आप इंसर्ट आउट करके इसको लेस इंसर्ट करके आप जो है ना वो कर सकते हैं, एक्चुअली अचीव कर सकते हैं। द रॉड्स आर सेट टू पोसेस अ रिएक्टिविटी वर्थ दैट शुड बी एडिक्वेट टू कवर ऑपरेशनल कंट्रोल। रिएक्टिविटी वर्थ भी होती है इसकी कि आप ऑपरेशनल कंट्रोल को कर सकते हैं। ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कोर फ्यूल डिप्लीशन, शट डाउन एंड सच अदर इफेक्ट एज डॉपलर, samarium and xenon poisoning। ये भी आप चीज़ें अचीव कर सकते हैं इसके थ्रू। Another method of control in pressurized water reactor called chemical shim is used in addition। अच्छा, दूसरा मेथड क्या है chemical shim का? is used in addition to not in lie of control rods। कंट्रोल रॉड के साथ साथ केमिकल शिम भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये उसका अल्टरनेट नहीं है। केमिकल शिम इज़ द यूज़ ऑफ सोलूबल ऑब्जॉर्बर, यूजुअली बोरिक एसिड होता है इसमें, केमिकल शिम के तौर पर बोरिक एसिड यूज़ होता है इन द मॉडरेट कूलेंट के अंदर। द कंसंट्रेशन ऑफ दिस ऑब्जॉर्बर इन द मॉडरेट कूलर इज डिक्रीज स्लोली ड्यूरिंग द कोल्ड लाइफ टाइम टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ फ्यूल डिप्लीशन। द कंसंट्रेशन जो होती है ऑब्जॉर्बर की वो डिक्रीज हो जाती है आहिस्ता फ्यूल डिप्लीशन की वजह से। द कंसंट्रेशन आर सफिशिएंट टू परमिट ऑपरेटिंग द कोर ऑलमोस्ट अनरॉडेड। तो कंसंट्रेशन इतनी होती है कि वो अनरॉड हो जाता है कोर जो है अनरॉड, विद ऑल कंट्रोल रॉड्स नियरली फुल विदड्रॉन, कि आप तमाम की तमाम कंट्रोल रॉड्स को विदड्रॉ कर लेते हैं। इट शुड बी मेंशन्ड हियर दैट बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स डू नॉट यूज केमिकल शिम। बॉइलिंग वाटर जो है वो नहीं यूज़ करते कंट्रोल शिम को, यानी PWR में केमिकल शिम यूज़ होती है लेकिन बॉइलिंग वाटर रिएक्टर में नहीं होती। And that core of BWR can be built in at several positions of the control rod because of strong effect of steam void on reactivity। एक्टिव वजह से ये 10.8 में हम पढ़ेंगे। तो BWR की कोर जो है एक्टिव में होती है at several position of the control rod। Another control system is the use of reflectors। एक और ये रिफ्लेक्टर आप यूज़ करते हैं। These are mechanically operated devices। रिफ्लेक्टर मैकेनिकली ऑपरेटेड डिवाइस होती हैं सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड द कोर या कोर के आउटसाइड होती हैं, दैट कंटेन्स मटेरियल दैट रिफ्लेक्ट्स सम ऑफ द न्यूट्रॉन एस्केपिंग द कोर बैक इनटू इट।
वो रिफ्लेक्ट कर देता है। कोर के आउटसाइड होता है, एक निकलेगा तो फिर जैसे ही न्यूट्रॉन निकलने लगता है तो वो वापस उसको भेज देता है। ये है मैकेनिकली ऑपरेटेड। The reflectors are swung away or towards or are axially moved with respect to the core to increase or decrease power। रिफ्लेक्टर के जरिए कि आपने किस तरफ उसको न्यूट्रॉन को भगाना है, मूव कराना है, एक्सियली, टुवर्ड्स, इनवर्ड, अवे हम कर सकते हैं। This method is used only for small power reactors in special cases such as SNAP 10A reactor which was operated in space। इन स्पेस में जो स्नैप 10A है उसमें आप रिफ्लेक्टर यूज़ करते हैं, वरना ये इतना ज़्यादा छोटी पावर के लिए है, स्मॉल पावर रिएक्टर के लिए, लार्ज के लिए नहीं है। एंड मेथड ऑफ कंट्रोल ऑफ लेसर यूज येट इज द यूज ऑफ सम मूवेबल फ्यूल रॉड्स। एक और मेथड कंट्रोल रॉड का लेसर यूज सम मूवेबल फ्यूल रॉड, कि आप फ्यूल रॉड ही मूवेबल हों, कि आप जितना रिएक्शन कराना चाह रहे हैं उतने फ्यूल रॉड जो है ना वो आपस में इंटरेक्ट आए। इससे ये होगा कि आपके कंट्रोल रॉड की लाइफ बढ़ जाएगी। दीज आर विड्रॉन फ्रॉम द कोर टू डिक्रीज पावर एंड इंसर्टेड इंक्रीज। अब फ्यूल रॉड जो है जैसे जैसे आप उसको इंसर्ट करेंगे पावर बढ़ती जाएगी, अगर लेस इंसर्ट करेंगे तो पावर कम होगी। द अपोजिट ऑफ द पॉइजन कंट्रोल रॉड, पॉइजन कंट्रोल रॉड की नस्बत ये अपोजिट काम करते हैं क्योंकि ये फ्यूल रखते हैं। तो ये आज का लेक्चर है, ये ब्रीफली हमने कुछ पढ़ा है, ये आप बुक से भी पढ़ लीजिएगा। MML वकील की बुक है, चैप्टर नंबर 9.14 से लेके एंड तक हमने ये आज कवर किया है। इसमें ब्रीफली इसने इंट्रोडक्शन दिया है MML वकील की बुक से। चलिए, थैंक यू क्लास।